ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 12 ਜਨਵਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ, ਪੀਸੀਐਸ, ਐਸਐਸਸੀ, ਸੀਜੀਐਲ, ਸੀਐਚਐਸਐਲ ਔਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ। IBPS, RRB, JEE ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, SI ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਚਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਟਿਕ ਫੈਕਟ ਦੇਖਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਫਰਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀय ਦਿਵਸ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀय ਦਿਵਸ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। NRI ਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਿਨ 16th ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀय ਦਿਵਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਚੁਅਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਟੂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ। ਜਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਰਹੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਸੁਰੀਨਾਮੇ ਚੰਦਰਿਕਾ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਚੰਦਰਿਕਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਯੂਥ ਅਫੇਅਰਸ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ। ਯੂਥ ਅਫੇਅਰਸ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ यानी कि किरण रिजिजू द्वारा यूथ प्रवासी भारतीय दिवस शुरू किया गया 8 जनवरी 2021 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ऑनलाइन। थीम रही ब्रिंगिंग टुगैदर यंग अचीवर्स फ्रॉम इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा। ब्रिंगिंग टुगैदर यंग अचीवर्स फ्रॉम इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा। स्पैशल गैस्ट ऑफ इवेंट, इस इवेंट के स्पैशल गैस्ट सीगे फर्स्ट इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड प्रियंका राधा कृष्णन। नेक्स्ट है कीर्थक ससिंदरन द्वारा एक बुक लिखी गई द धर्मा फॉरेस्ट। बुक के राइटर कीर्थक ससिंदरन। निधि वधेरा द्वारा बुक लिखी गई रोमांसिंग टारगेट्स। अमृत राज द्वारा जी बुक लिखी गई उस बुक का नाम है इंडियन आइकन अकल्ट कॉल्ड रॉयल एनफील्ड। अमृत राज द्वारा इंडियन आइकन अकल्ट कॉल्ड रॉयल एनफील्ड। 3 इंपॉर्टेंट बुक्स बैक टू बैक याद रखेंगे। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा IIT कानपुर और फर्स्ट यानी कि फाउंडेशन ऑफ इनोवेशन एंड रिसर्च इन साइंस एंड टैक्नोलॉजी दोनों के नाल एग्रीमेंट मिल के एग्रीमेंट साइन किया गया। किस दे लिए? एक फिनटैक इनोवेशन सेंटर लगाने के लिए। कित्थे लगाया जाएगा? ये पंजाब नेशनल बैंक द्वारा IIT कानपुर दे विच लगाया जाएगा। IIT खड़गपुर द्वारा 5G ड्रोन्स बनाए गए जो कि किस चीज़ का काम करने? एयरबोर्न मोबाइल टैलीकम्यूनिकेशन टावर्स का, यानी कि टावर के रूप में वरते जा सकेंगे डिजास्टर वाले इलाकों के। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया साइंड MOU विद NAB फाउंडेशन। सेंट्रल बैंक द्वारा NAB फाउंडेशन के नाल एग्रीमेंट साइन किया गया जो कि एक सबसिडरी है NABARD की, टू प्रोवाइड लोन्स टू सैल्फ हैल्प ग्रुप्स। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हैडकुआटर कित्थे है? मुंबई दे विच। IDFC म्यूचुअल फंड। IDFC म्यूचुअल फंड की गल करते हैं। इस द्वारा एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया गया, पैसों को रोको मत। इसका हैडकुआटर मुंबई के विच है। इस MD की गल करते हैं तो V विद्यानाथन। फूड प्राइस इंडेक्स फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च किया जाता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। 16 अक्तूबर 1945
ਅਕਤੂਬਰ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਰੋਮ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਔਰ ਕਿਊ ਡੋਂਗਿਊ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਹਰ ਮੰਥ ਦਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਐਫਰਟਸ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਐਂਡ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਨਾਰਥ ਈਸਟ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਜਾਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾਸ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਆਨਰੇਰੀ ਕਾਉਂਸਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਜੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾਸ ਨੂੰ। ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਐਰੀਦਾ ਦੁਆਰਾ NHPC ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਇਨ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਆਪਣੀ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵੂਮਨ ਪਾਇਲਟ ਜ਼ੋਇਆ ਅਗਰਵਾਲ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੂਮਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਆਲ ਵੂਮਨ ਪਾਇਲਟ ਟੀਮ, ਪਹਿਲੀ ਆਲ ਵੂਮਨ ਪਾਇਲਟ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਤੋਂ ਫਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦਾ ਲੌਂਗੈਸਟ ਏਅਰ ਰੂਟ ਫਰੋਮ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਟੂ ਬੈਂਗਲੋਰ। डिस्टेंस ਸੀਗਾ 16,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਤਕਰੀਬਨ 17 ਜਾਂ 18 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਇਹ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਲ ਵੂਮਨ ਪਾਇਲਟ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਡਰ ਜ਼ੋਇਆ ਅਗਰਵਾਲ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਐਸੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫॉर ਕਲੀਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟ ਆਫ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਆਫ ਆਰਟੀਕਰਾਫਟ। US ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਲੈਕਟ ਜੋ ਬਿਡਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਮੋਨਾ ਗੁਹਾ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫॉर ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ NSC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤਰੁਣ ਛਾਬਰਾ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫॉर ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਾਰਮਰ HDFC ਬੈਂਕ CEO ਆਦਿਤਿਆ ਪੁਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਨੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਸਟਰਾਈਡਸ ਗਰੁੱਪ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ। ਸਟਰਾਈਡਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ RS ਚੌਹਾਨ ਨਿਊ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੌਣ ਨੇ? ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ RS ਚੌਹਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ 2 ਜਾਂ 3 ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ MP ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਿਲ ਚੇਅਰਡ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ UNSC 1373 ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਲੀਬੀਆ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਕਮੇਟੀ, 3 ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇਗੀ UNSC ਦੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਟੂ UN TS ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਦੁਆਰਾ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇਦਕਰ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕੈਲੰਡਰ ਔਰ ਡਾਇਰੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 11 ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਜੀਟਲ ਕੈਲੰਡਰ ਵਾਲੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਦੁਆਰਾ ਡਾਕਟਰ ਕਰਾਨੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਟਲ ਦਾ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਪਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕਰਾਨੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਏਜਿੰਗ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਔਰ ਵਰਲਡ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਰਵੇ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲਡਰਲੀ ਪੀਪਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 2050 ਤੱਕ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਕਸੈਪਟ ਸਿੱਕਿਮ। ਜਾਪਾਨ ਦੁਆਰਾ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਯੈਨ ਕਮਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ 2113 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਫॉर ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਲੋਨ ਫॉर COVID-19। ਜਾਪਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੋਕੀਓ ਏਰੀਆ ਔਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਰਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਕੀਮਸ ਪੰਜਾਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ਗੁਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 5100 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਸੈਨੀਟਰੀ ਪੈਡਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ
ਬਸੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਲਮ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਨੂੰ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਤੀਸਰੀ ਸਕੀਮ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ 96,000 ਮੀਟਰਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ 2500 ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈ ਦਾਖਿਲ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨੋਗਰੇਟ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਈ ਦਾਖਿਲ ਪੋਰਟਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੰਡਕਟਿਡ ਟੈਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਜੀਨਸਲੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਫਤਿਹ 1 ਮਿਸਾਈਲ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਂਜ ਹੈ 140 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇੰਡੀਆ ਸਫਰਡ ਬਿਗੇਸਟ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਇੰਪੈਕਟ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਇਨ 2020। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਇਆ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਇੰਟਰਨੈਟ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਇੰਪੈਕਟ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲਡ ਏਰੀਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਟੇਟ ਨੂੰ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦਾ H5N8। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਨਿਊ ਬਗਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਅਰਮੇਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ। ਫਾਰਮਰ ਗੁਜਰਾਤ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ और सीनियर कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया माधव सिंह सोलंकी की रिसेंटली डेथ हो गई है। यूपी सब तो पहले नंबर ते इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन दे। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई। करनाटका चीफ मिनिस्टर BS येदुरप्पा द्वारा 40 कृषि संजीवनी वैनस ਨੂੰ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਲੈਗਡ ਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੈਂਗਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਸਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਖਾਦੀ ਕਲੋਥਸ ਗਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਿਤਰਾ ਘੋਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਤਾਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਨੀਸ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ 64th ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੇਸਰੀ ਟਾਈਟਲ ਦੇ। ਕਿਸ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕ ਡਾਂਸਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਡੇ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫੋਕ ਡਾਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੌਟੰਕੀ, रसीला, झोरा, चपेली और कत्थक। नौटंकी, रसीला, झोरा, चपेली और कत्थक डांस फॉर्म और उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड चोलिया, जगार्स, थाली और बरादा नाट उत्तराखंड। वेस्ट बंगाल जात्रा, छाऊ और काठी। त्रिपुरा होजागिरी, होजागिरी डांस फॉर्म त्रिपुरा। तेलंगाना की गल करते हैं पैरिनी और लंबादी। पैरिनी डांस फॉर्म और लंबादी डांस फॉर्म कित्थे दे? तेलंगाना दे। स्टार्ट करांगे अज दी फर्स्ट न्यूज़ दे नाल। फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट न्यूज़ ने और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ ने अज दे सैशन दे विच भी। सब तो पहले वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया? वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी नूं ऑब्जर्व किया गया, यानी कि संडे के दिन ऑब्जर्व किया गया सी वर्ल्ड हिंदी डे। इस तो इलावा काफ़ी इंपोर्टेंट फैक्ट्स वर्ल्ड हिंदी डे के रिलेटेड डिस्कस करते हैं। सब तो पहले बाकी इंपोर्टेंट डे आप रिवाइज नहीं करांगे, पहले रिवीजन की हुई है। फॉर एग्जाम्पल DRDO डे हो गया 1 जनवरी, और भी जोड़े भी दिन आप डिस्कस किए, ब्रेल डे हो गया वगैरह वगैरह। डायरैक्टली चलते हैं, काफ़ी डिटेल भी डिस्कस कर रहे हैं कि वर्ल्ड हिंदी डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट हिंदी वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। पहली वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस नागपुर महाराष्ट्र दे विच कंडक्ट की गई सी 10 जनवरी 1975 दे विच। 10 जनवरी 1975 दे विच इसनूं शुरू किया गया सी। ठीक है, इसनूं इनोग्रेट किया गया सी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी द्वारा। पहली वर्ल्ड दी हिंदी कॉन्फ्रेंस
1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਵਰਲਡ ਹਿੰਦੀ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 2006 ਤੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਰਲਡ ਹਿੰਦੀ ਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿੰਦੀ ਡੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਾਂਗੇ ਹਿੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਂਗੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਇसी ਦਿਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੂ ਵਿਲ ਐਡਰੈਸ ਫੰਕਸ਼ਨ of second national youth parliament festival on 12th जनवरी। जिस तरीके नाल 10th जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे, ठीक है, उसी तरीके नाल 12th जनवरी ਨੂੰ इंडिया ਕਿਹੜਾ दिन ऑब्जर्व करता है नैशनल यूथ डे, यानी कि अज दे दिन नैशनल यूथ डे है। ठीक है, तो इस दिन सैकेंड नैशनल यूथ पार्लियामेंट फैसटिवल ਨੂੰ खत्म किया जाएगा। ठीक है, ਜਿਹੜਾ कि काफ़ी दिनों तो चल रहा ਸੀਗਾ। अगर आप गल करांगे, आप डिस्कस भी की पहले ही कि यह कदों तो शुरू किया गया, डिस्कस करांगे वो भी। तो इस एड्रैस कौन करनगे लास्ट दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अज के दिन तकरीबन 10 बजे यह एक शुरू किया जाएगा, मीटिंग है जी, याद रखांगे। और इस दे विच काफ़ी डिटेल दे विच थोड़ा डिस्कस करते हैं इस न्यूज़ को। इस तो इलावा पहले डिस्कस कर दें कि प्रकाश जावेदकर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट मिनिस्टर ने, इस तो इलावा प्रकाश जावेदकर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने और हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री भी देख रहे हैं। राज्यसभा MP ने महाराष्ट्र तो, रमेश पोखरियाल निशंक एजुकेशन मिनिस्टर ने और हरिद्वार उत्तराखंड तो लोक सभा MP ने। नितिन गडकरी की गल करते हैं तो नितिन गडकरी लवे MSME मिनिस्ट्री है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजिज। इस तो इलावा इन्हों लवे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, नागपुर महाराष्ट्र तो लोक सभा MP ने। रामनाथ कोविंद इंडिया के प्रेजिडेंट ने, किनवें प्रेजिडेंट ने तो 14th नंबर के प्रेजिडेंट ने। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नैशनल यूथ डे ते, नैशनल यूथ डे है जिहड़ा हर साल 12 जनवरी ਨੂੰ ऑब्जर्व किया जाता है टू कमैमोरेट स्वामी विवेकानंद। इस दे लई सैकेंड नैशनल यूथ पार्लियामेंट फैसटिवल ऑर्गेनाइज किया गया। ये 23 दिसंबर तो चल रहा है, 23 दिसंबर तो चल रहा है, 12 जनवरी यानी कि अज के दिन खत्म होएगा। और इस दे विच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रैस करनगे विद अराउंड 2.5 लाख 2.34 लाख पार्टिसिपेंट्स इस दे विच पार्टिसिपेट कर चुके हैं। ठीक है जी। इसी दे नाल याद रखांगे इंटरनैशनल यूथ डे कदों ऑब्जर्व किया जाता है तो इसनूं 12 अगस्त नूं ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है जी। और अगर आप गल करते हैं इस तो इलावा होर की डिस्कस कर सकते हैं, चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 दे विच इंडिया की रैंकिंग कितनी है तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 दे विच इंडिया 85th नंबर पर है। ठीक है जी। हुण सिर्फ हल्का या डिफरेंस है, इसमें भी पूरी डिटेल डिस्कस कर लेने हैं। इंपॉर्टेंट रहेगी कि इंडिया रैंक्स एट 85 इन हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 टॉप्ड बाय जापान। हर साल जापान ही इसमें टॉप करता है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में। इस साल भी जापान ने टॉप किया है। अगर इंडिया की रैंकिंग की गल करते तो इंडिया की एक रैंक पिछे चली गई है लास्ट ईयर नालों। इंडिया इस साल 85वें नंबर पर है, इंडिया के नाल तजाकिस्तान भी 85वें नंबर पर है। ये याद रखांगे, इंडिया के नाल तजाकिस्तान भी, जी तजाकिस्तान कंट्री है, ये भी 85वें नंबर पर है। लास्ट ईयर 2020 के विच इंडिया 84वें नंबर पर सीगा और 2019 के विच इंडिया 86वें नंबर पर सीगा। तजाकिस्तान कैपिटल दुशानबे है, करंसी सोमोनी चलती। नेक्स्ट है विच इंडियन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी हैज़ लॉन्च इट्स वाईफाई कॉलिंग सर्विस फॉर वॉइस एंड वीडियो। केड़ी इंडियन कंपनी ने एक वाईफाई कॉलिंग सर्विसेज
रिसेंटली शुरू की है, जिसका नाम भी की रखा गया वो वाईफाई। तो किहड़ी कंपनी द्वारा? रिलायंस जियो द्वारा इसनूं लॉन्च किया गया। ठीक है जी, डायरैक्टली याद रखांगे। नैक्सट है, हू इज़ अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है जी, हालांकि इन्हां दी जिहड़ी अपॉइंटमेंट सी काफ़ी टाइम तो पहले ही अनाउंस कर दी गई सी, पर फाइनल अनाउंसमेंट नहीं की गई सी। फॉर एग्जाम्पल आपने डिस्कस किया सी, अगर तुहानूं याद होएगा कि रिकमेंड किया गया सी इन्हां दा नाम बैंकर बोर्ड ब्यूरो द्वारा इन्हां दा नाम रिकमेंड किया गया सी। फाइनल अनाउंसमेंट हुण की गई है, तो किन्हां नूं अपॉइंट किया गया? जे वेंकटा रामू। ठीक है, मैं पहले भी दस्सिया सी कि अगर बैंकर बोर्ड ब्यूरो किसी चीज़ के लिए नॉमीनेट करता है तो 99.4 ਜਿਹੜੇ चांसिस ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ अपॉइंट किया जाता है जिसनों नॉमीनेट किया जाता है बैंकर बोर्ड ब्यूरो द्वारा। तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्वेश्चन होर पूछे जा सकते हैं कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक कदों बनाया गया सी? तो 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ, हैडकुआटर न्यू दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ, और इन्हां दी अपॉइंटमेंट किन्ने टाइम ਲਈ ਕੀਤੀ गई है? तो 3 साल के लिए इन्हां दी अपॉइंटमेंट की गई है। इस तो इलावा बाकी सारे नाम न्यूज़ दे विच ने, डिस्कस करते हैं। तो मुहम्मद रफीक जी आप गल की कि चीफ जस्टिस मुहम्मद रफीक चीफ जस्टिस बनाए गए ने MP हाई कोर्ट के, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के बाय गवर्नर आनंदीबेन पटेल। इन्हों की जी शपथ सी किन्हों ने दिलवाई है? तो गवर्नर ने दिलवाई है। तो आनंदीबेन पटेल MP के गवर्नर ने। आर्यन जैन बेसिकली एक हाई स्कूल स्टूडेंट ने गुरुग्राम हरियाणा तो। आर्यन जैन एक हाई स्कूल स्टूडेंट गुरुग्राम हरियाणा तो। इन्हों का नाम नासा द्वारा एक कहांगे कि कंपीटिशन ऑर्गेनाइज किया गया, एक चैलेंज ऑर्गेनाइज किया गया जिसके विनर्स के विच इन्हों का नाम है। ठीक है, इंडियन परसन इस करके नाम इंपोर्टेंट रहेगा। नासा ने आर्टिमिस आप डिस्कस भी किया कि नासा का आर्टिमिस जो मिशन है ये किस दे रिलेटेड है? तो यह मून के रिलेटेड है कि मून के उत्ते लोगों को भेजा जाएगा जिसका नाम है आर्टिमिस मिशन नासा का। ठीक है जी, तो इस मिशन के लिए एक एप्लीकेशन बनाने के लिए एक चैलेंज लॉन्च किया गया जिसके विनर्स के विच आर्यन जैन का नाम है। आर्टिमिस नैक्सट जनरेशन स्टेम मून टू मार्स एप्लीकेशन डेवलपमेंट चैलेंज। नैक्सट है साबरीना सिंह, US प्रेजिडेंट इलैक्ट जो बिडन द्वारा इंडियन अमेरिकन साबरीना सिंह नूं डिप्टी प्रेस सैक्रटरी नामित किया गया। डिप्टी प्रेस सैक्रटरी नामित किया गया। विशाखा मुले वूमेन ने यह RBI द्वारा इन्हों अपॉइंट किया गया एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर ऑफ ICICI बैंक फॉर 3 ईयर्स। 3 साल के लिए विशाखा मुले नूं एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर अपॉइंट किया गया ICICI बैंक के विच। नैक्सट है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी हैज़ लॉन्च इट्स एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म एडल। हालांकि इस तरीके का प्लेटफॉर्म वाडा दे विच पहले तो भी सीगा, पर हुण इसनूं अपग्रेड किया गया तो दोबारा न्यूज़ दे विच है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, क्वेश्चन है कि वाडा का हैडकुआटर कित्थे है? काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, पर थोड़ी इसके रिलेटेड डिस्कस कर लेने कि जी एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म है इस दे विच स्पोर्ट्स परसन नूं किस तरीके नाल एंटी डोपिंग करके की नुकसान होंदे ने और डोपिंग नूं किस तरीके नाल रोकिया जा सकता है, तो इस तरीके के मेजर्स सिखाए जाते हैं। लर्निंग प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हैडकुआटर है जिहड़ा मॉन्ट्रियल कैनेडा दे विच है। मॉन्ट्रियल कैनेडा दे विच इसका हैडकुआटर है। ठीक है जी, याद रखांगे। इस तो इलावा जनेवा दे विच सब तो इंपोर्टेंट हैडकुआटर याद रखांगे WHO का। ठीक है, इस तो इलावा होर भी काफ़ी हैडकुआटर्स ने जनेवा दे विच। ग्लासगो स्कॉटलैंड तो याद रखांगे COP26 जिहड़ा समिट है ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा ग्लासगो स्कॉटलैंड दे विच। और आप डिस्कस किया होया इसके प्रेजिडेंट कौन अपॉइंट किए गए सी? आलोक शर्मा। ठीक है जी, दोबारा हाईलाइटेड रही सी न्यूज़ ये, इस करके डिस्कस कर रहे हैं कि आलोक शर्मा से जिहड़े इस दे प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए सी इंडियन परसन ने। न्यूयॉर्क दे विच सब तो पहले तो UN का हैडकुआटर है और UN की सबसिडरीज का हैडकुआटर भी न्यूयॉर्क दे विच है। सिर्फ एक सबसिडरी नूं छड्ड के किहड़ी? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसका हैडकुआटर हेग दे विच है।
हेग किहड़ी कंट्री दे विच है? तां नीदरलैंड। लंडन यूके दे विच काफ़ी हैडकुआटर्स ने, जिस दे विच वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल हो गया, ठीक है। इस तो इलावा एक होर इंपोर्टेंट एमनेस्टी इंटरनेशनल है दा हैडकुआटर भी लंडन यूके दे विच है, इंपोर्टेंट रहेगा। कॉमनवैल्थ गेम्स का हैडकुआटर भी लंडन यूके दे विच। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड टू लॉन्च अ कॉन्टैक्टलैस रुपए डेबिट कार्ड? कॉन्टैक्टलैस रुपए डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाल किहड़े बैंक ने पार्टनरशिप की है? तो SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है जी, याद रखांगे। इस तो इलावा SBI के हैड का नाम याद रखांगे, दिनेश कुमार खारा चेयरमैन ने। इस तो इलावा एक इंपोर्टेंट नाम तुसी दसोगे, काफ़ी बार आप डिस्कस किया, MD SBI के MD रीसेंटली अपॉइंट किए गए सी, ठीक है। इन्हों का नाम कमेंट बॉक्स के विच, इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट है, हर एक नूं पता ही होएगा। वैसे तो RBI की गल करदे एक क्वेश्चन इत्थों डिस्कस करांगे। RBI दे विच शक्तिकांत दास गवर्नर ने, किन्नवें नंबर के गवर्नर ने? 25वें नंबर के गवर्नर ने। 4 डिप्टी गवर्नर ने, MK जैन, BP कनगो, माइकल डी पात्रा। चौथी पोस्ट से रिसेंटली परसन अपॉइंट किए गए सी, इन्हों का नाम भी दसने। 2 क्वेश्चनस इतों पूछ रहे हैं, कमेंट बॉक्स के आंसर देने। नेक्स्ट है, देवोस एजेंडा समिट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज टू बी ऑर्गेनाइज्ड ऑनलाइन, वेयर इज द हैडकुआटर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हैडकुआटर पहले कितने है, उस तो बाद न्यूज़ डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हैडकुआटर स्विट्जरलैंड के बेसिकली कोलोगनी देवोस स्विट्जरलैंड के इसका हैडकुआटर है, ठीक है जी। स्विट्जरलैंड के देवोस सिटी है और देवोस के भी कोलोगनी के इसका हैडकुआटर है। इस तो इलावा हुण न्यूज़ डिस्कस करते हैं। न्यूज़ इंपोर्टेंट है कि जी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, अच्छा, इससे रिलेटेड आप पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। इस इंडियन परसनस द्वारा पार्टिसिपेट भी किया जाएगा। पहले एक ऑप्शन डिस्कस कर लें कि USA और UK इन्होंने कंट्रीज़ के हैडकुआटर्स की गल करते हैं तो वर्ल्ड बैंक का हैडकुआटर वाशिंगटन DC के USA के। इस तो इलावा UN बारे आप हुणे डिस्कस करके हटे हैं, न्यूयॉर्क के हैडकुआटर है। IMF का हैडकुआटर वाशिंगटन DC के है। UK के लंडन के बारे आप डिस्कस किए हैं हैडकुआटर्स। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं ग्लैंड सिटी, एक क्वेश्चन पूछने थे कि UK की एक ग्लैंड सिटी है, इत्थे हैडकुआटर है किसी चीज़ का, किस चीज़ का हैडकुआटर है? कमेंट बॉक्स के विच। न्यूज़ की है कि जी पहले इतने डिस्कस करते कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जी एनुअल मीटिंग होंगी है, नॉर्मल जी मीटिंग होंगी है, वो आप डिस्कस की कि 50वीं मीटिंग 50th मीटिंग के विच जो कि देवोस के ऑर्गेनाइज की गई। दीपिका पादुकोण नूं अवार्ड दिता गया सी, ठीक है। हुण जी 51st मीटिंग है वो भी आप डिस्कस की कि पहले इसका वैन्यू स्विट्जरलैंड के ही चेंज किया गया सी लुसेरने के लिए, और बाद अनाउंस किया गया कि सिंगापुर के ऑर्गेनाइज की जाएगी, ठीक है। इस दे विच कोई चेंजिस नहीं है, सिंपली याद रखांगे। हुण एक होर मीटिंग होंदी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, 2 इंपोर्टेंट मीटिंग्स होंदियां ने, जिस दे विच दूसरी मीटिंग का नाम है देवोस एजेंडा समिट। देवोस एजेंडा समिट यह ऑनलाइन ऑर्गेनाइज की जाएगी, ठीक है। तो देवोस एजेंडा समिट ऑनलाइन ऑर्गेनाइज की जाएगी। इस दे विच इंडिया के वलों नरेंद्र सिंह तोमर एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो गए, नितिन गडकरी उन्हें डिस्कस किया MSME मिनिस्टर और रोड ट्रांसपोर्ट, स्मृति ईरानी वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, पीयूष गोयल कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम एंड नैचुरल गैस मिनिस्टर। इस तो इलावा मुकेश अंबानी और आनंद महिंद्रा भी इस दे विच पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है जी। इसी दे नाल याद रखांगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जी एनुअल मीटिंग है यह 2022 की सिंगापुर दे विच कंडक्ट की जाएगी। सॉरी 2021 आएगा थे, 2021 की सिंगापुर दे विच कंडक्ट की जाएगी, ठीक है। मई दे विच इसनूं ऑर्गेनाइज किया जाएगा, याद रखांगे। इस तो इलावा कोलोगनी स्विट्जरलैंड के हैडकुआटर है, 1971 दे विच बनाया गया सी और इसके चेयरमैन ने क्लॉस शैकब और यह कित्थों बिलोंग करते हैं? जर्मनी तो बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है हु डेडिकेटेड
द न्यू कोस्टल रिसर्च व्हीकल सागर अन्वेषिका टू द नेशन एट चेन्नई पोर्ट। जिन्ने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हर एक का इत्थे आंसर है कि इसनू किसने लॉन्च किया है, तो लॉन्च किया गया डॉक्टर हर्षवर्धन एज ए अर्थ साइंस मिनिस्टर या कह सकते हैं साइंस एंड टैक्नोलॉजी मिनिस्टर। दोनों इंपोर्टेंट मिनिस्ट्री इन्होंने लवे ने। इस तो इलावा हैल्थ मिनिस्ट्री देख रहे हैं चांदनी चौक दिल्ली तो लोक सभा MP ने। हुण सागर अन्वेषिका की है? सागर अन्वेषिका एक कोस्टल रिसर्च व्हीकल है, यानी कि ओशन की रिसर्च की जाती है और अंडर वाटर यह काम करता है। ठीक है, तकरीबन 18 घंटे या 16 घंटे शायद अंडर वाटर रह सकता है। कित्थे लॉन्च किया गया? तो चेन्नई पोर्ट के उत्ते इसनूं लॉन्च किया गया। ठीक है जी, याद रखांगे। इस तो इलावा अमित शाह होम मिनिस्टर ने गांधीनगर गुजरात तो लोक सभा MP ने। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर ने लखनऊ उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP ने। धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम एंड नैचुरल गैस मिनिस्ट्री इन्हां लवे इंपोर्टेंट मिनिस्ट्री। इस तो इलावा इन्हां लवे एक होर इंपोर्टेंट मिनिस्ट्री है, मेरे माइंड चो स्किप कर रही है, चलो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करांगे। मनसुख लाल मंडाविया लवे शिपिंग, पहले आप शिपिंग मिनिस्ट्री कहते सी, हुण इसनूं शिपिंग पोर्ट्स एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री कहा जाता है और यह राज्य सभा MP ने गुजरात तो। ठीक है जी, नोट कर दे चलिए। हुण एक होर इंपोर्टेंट न्यूज़ है धर्मेंद्र प्रधान के रिलेटेड डिस्कस करते हैं। और अमित शाह तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा किस दे लई? फॉर स्मूथ ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कोल माइनस। हालांकि अगर कोल मिनिस्ट्री की गल करते हैं तो प्रहलाद जोशी दे लवे है कोल मिनिस्ट्री, पर इस दे लई सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया जाएगा अमित शाह द्वारा। धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के नाल मिलके एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया क्लीन बिंदु सागर लेक नीयर लिंगराज टैंपल भुवनेश्वर। ठीक है जी, हुण क्वेश्चन स्टैटिक दे विच भी पूछा जा सकता है डायरैक्टली कि बिंदु सागर लेक कित्थे है? उड़ीसा दे विच है, उड़ीसा दे विच भी कित्थे है? भुवनेश्वर दे विच है। दूसरा क्वेश्चन लिंगराज टैंपल फेमस टैंपल कित्थे है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा दे विच है। ठीक है जी, दो स्टैटिक क्वेश्चन पक्का पूछे जा सकते हैं इत्थों। इस तो इलावा किन्ना ने इसनूं लॉन्च किया है यह भी याद रखांगे। नेक्स्ट है विच कंट्री इज द फोकस कंट्री ऑफ द 51st एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट रहेगा और इस दे रिलेटेड अगर आप ओल्ड न्यूज़ की गल करते हैं वो भी डिस्कस करते हैं। तो 51st एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया दे विच फोकस कंट्री किहड़ी रहेगी? तो बांग्लादेश रहेगी। ठीक है जी, इस तो इलावा आप डिस्कस किया सी कित्थे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? गोवा दे विच। ठीक है जी, इस तो इलावा आप ये भी डिस्कस किया सी कि रीसेंटली इसकी ज्यूरी बनाई गई, इस दे लई ज्यूरी जिहड़ी बनाई गई, ज्यूरी के हैड कौन ने? पैब्लो सैजर किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं? अर्जेंटीना तो। इस ज्यूरी दे विच इंडियन मैंबर कौन ने? प्रिया दर्शन। टोटल 5 पर्सन सीगे, नाम इंपोर्टेंट बन गए उन्होंने। इस तो इलावा आप डिस्कस किया ओपनिंग मूवी किहड़ी है? तो अनदर राउंड। अगर आप गल करते हैं इस मूवी कित्थे दी मूवी है? डेनमार्क दी। इसके डायरैक्टर का नाम मेरे माइंड चो स्किप कर रहा है, डायरैक्टर का नाम थॉमस कुछ नाम सी, थॉमस विंटरबर्ग शायद, थॉमस विंटरबर्ग इज द डायरैक्टर। ठीक है, इसी तरीके नाल क्लोजिंग मूवी वाइफ ऑफ अ स्पाई जैपनीज मूवी है। ठीक है जी, इस तो इलावा इसके डायरैक्टर सीगे समथिंग कियोशी सीगे इसके कुछ डायरैक्टर याद रखांगे। ठीक है जी, सारे फैक्ट्स जिन्ने ये फैक्ट्स ने इन्हां दे विचों क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम दे विच जरूर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इत्थों बन रहे हैं और किसी न किसी पॉइंट तो क्वेश्चन पक्का उठाया ही जाएगा इस दे विचों, याद रखांगे। इस तो इलावा जो इसके कहांगे कि अनाउंस कर दिते जाएंगे अवार्ड, तो अवार्ड भी आप डिस्कस करांगे। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं बाकी ऑप्शनस दे विचों इंपोर्टेंट न्यूज़ ने, फॉर एग्जाम्पल आप सूरीनाम रिलेटेड
कहा सी कि तुहानूं डिस्कस करांगे एक इंपोर्टेंट न्यूज़ और मोस्ट इंपोर्टेंट कहांगे तो डिस्कस करते हैं। सब तो पहले नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया की विजिट ते आ रहे हैं प्रदीप कुमार गयावाली। प्रदीप कुमार गयावाली इंडिया की विजिट ते 14 जनवरी को आ रहे हैं। डायरैक्टली पूछा जा सकता है किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं, तो नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर ने। ठीक है जी। यूएसए रिलेटेड न्यूज़ थी कि ट्विटर द्वारा सस्पेंड किया गया यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट। ठीक है, हुण इत्थों क्वेश्चन इस तरीके नाल नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन्हों के फॉलोअर्स किन्ने सीगे, क्योंकि इन्हों के मैक्सीमम फॉलोअर्स सीगे, सब तो ज़्यादा फॉलोअर्स ट्विटर के उत्ते अगर किसी लीडर के वर्ल्ड लीडर की गल करते हैं कैटेगरी के विच किन्ना दे सी, तो इन्हां दे सी 88 मिलियन। ठीक है जी। और क्वेश्चन अगर ये भी ना पूछा गया तो इस तरीके नाल पूछा जा सकता है कि हुण टॉप ते कौन ने, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि दूसरे नंबर ते सी, ये पहले नंबर ते आ चुके हैं वर्ल्ड लीडर के विच सब तो ज़्यादा फॉलो करने वाले परसन, तो 63 मिलियन के नाल। ठीक है जी, याद रखांगे। इस तो इलावा सूरीनाम रिलेटेड काफ़ी इंपोर्टेंट न्यूज़ कि यूके दे प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन द्वारा इंडिया की जो विजिट कैंसल की गई है रिपब्लिक डे की, तो चीफ गेस्ट किन्हों बुला लिया गया चंद्रिका प्रसाद नूं। चंद्रिका प्रसाद ने जिहड़े सूरीनामे के प्रेजिडेंट ने, सूरीनामे कंट्री के, ये हुण इंडिया के चीफ गेस्ट रहेंगे रिपब्लिक डे वाले दिन। तो कैपिटल पारामारीबो है, करेंसी इत्थे डॉलर चल। ठीक है जी, इंपोर्टेंट न्यूज़ रहेगी, काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट, याद रखांगे। इस तो इलावा अगर ट्विटर की गल करते हैं, ट्विटर के रिलेटेड कैलीफोर्निया यूएसए के हैडकुआटर है, याद रखांगे। और जैक डॉर्सी ट्विटर के हैड ने। ठीक है जी, इंपोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ऑफ टॉयज विल बी सैटअप इन विच स्टेट। किहड़ी स्टेट दे विच क्लस्टर ऑफ टॉयज, एक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर लगाया जाएगा टॉयज के लिए। पहला ये कित्थे लगाया जाएगा, अनाउंसमेंट की गई है, तो लगाया जाएगा कर्नाटका दे विच। ठीक है जी, इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी गई है, कर्नाटका दे विच ये लगाया जाएगा। ठीक है, थोड़ी डिटेल दे विच इसनूं डिस्कस करते हैं। इस तो इलावा बाकी स्टेट्स के रिलेटेड भी न्यूज़ ने वो भी डिस्कस करते हैं। तो कर्नाटका चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया इंडिया के पहले इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ऑफ टॉयज का, तो कित्थे भानापुर कोपाल डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। भानापुर कोपाल डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। महाराष्ट्र बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा, दो इंपोर्टेंट न्यूज़ ने, बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा एडवरटीजमेंट के उत्ते बैन लगाया गया कि किसी भी तरीके की एडवरटीजमेंट अगर किसी गॉड के नाम के उत्ते की जाती है तो वह इलीगल रहेगी। ठीक है जी, एडवरटीजमेंट ऑफ एनी आर्टिकल यूजिंग द नेम ऑफ एनी गॉड एज इलीगल। महाराष्ट्र की थाने सिटी के विच एक पीरीयड रूम बनाया गया पब्लिक टॉयलेट के विच, वूमेंस के लिए पीरीयड रूम पब्लिक टॉयलेट के विच केड़ी सिटी के विच बनाया गया, तो थाने सिटी के विच। इसी तरीके नाल किसी भी गॉड के नाम के उत्ते एडवरटीजमेंट बैन करने वाली है, इलीगल कहने वाली केड़ी हाईकोर्ट बनी है, तो बॉम्बे हाईकोर्ट बनी है। ठीक है, इस तरीके ना क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंपोर्टेंट रहेंगे। इस तो इलावा केरला रिलेटेड एक इंपोर्टेंट न्यूज़ कि एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू जो कि एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है, इस दे लिए एक अकैडमी बनाई जाएगी त्रिवेंद्रमपुरम केरला दे विच। एक अकैडमी अनाउंस की गई है सरकार द्वारा, त्रिवेंद्रमपुरम केरला दे विच बनाई जाएगी। और हालांकि ये न्यूज़ ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं सी, पर ये न्यूज़ क्यों इंपोर्टेंट बनेगी, कलारीपयट्टू तो अगर तुहानूं याद आंदा होवे, आपां कुछ दिन पहले डिस्कस किया सी कि 4 इंपोर्टेंट स्पोर्ट्स नूं की किया गया खेलो इंडिया दे विच ऐड किया गया। पहले आपां डिस्कस किया सी कि ओलंपिक्स दे विच 4 चीज़ां नूं ऐड किया गया, जिस दे विच आपां डिस्कस किया सी ब्रेक डांसिंग 2024 वाले दे विच ऐड कीतियां जाणगियां और 2021 वाले दे विच स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग हो गया सीगा। ठीक है, होर भी काफ़ी सीगियां, तो जिस दे विच जिहड़ी खेलो इंडिया दे विच ऐड की गई ने 4 चीज़ां, उन्हां दे विचों एक है कलारीपयट्टू। ठीक है, इस तो इलावा अगर बाकी की गल करते हैं तो गतका सी पंजाब की, हर एक नूं पता होएगा। ठैंगटा सी मणिपुर की, और मलखम सीगी जो MP और महाराष्ट्र दे विच ऑर्गेनाइज की जाती है। ठीक है, 4 गेम्स नूं ऐड किया गया सी। तमिलनाडु
तमिलनाडु ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ आई लव ऊटी एक सैल्फी पॉइंट लगाया गया, ठीक है। ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, पर क्यों इंपोर्टेंट बन गया, क्योंकि इसमें लगाया कितने गया है, उदमागमंडलम स्टेशन, एक रेलवे स्टेशन के उत्ते लगाया गया, जो कि नीलगिरी माउंटेन का हिस्सा है, ठीक है। हुण क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नीलगिरी माउंटेन्स कित्थे पाई जांदियां ने, तमिलनाडु दे विच। ऊटी शहर किहड़ी स्टेट दे विच है, तमिलनाडु दे विच, ठीक है। डायरैक्टली दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनने। वेस्ट बंगाल द्वारा वल्चर सेंसस कंडक्ट किया गया एशियन किंग वल्चर की कंजरवेशन के लिए आफ्टर 14 ईयर्स, ठीक है जी। वल्चर सेंसस किहड़ी स्टेट द्वारा कंडक्ट किया गया, वेस्ट बंगाल द्वारा, ठीक है जी। इसी तरीके नाल क्रोकोडाइल सेंसस आपां डिस्कस किया सी, हाल ही दे विच उड़ीसा दे विच कंडक्ट किया गया, ठीक है जी। इस तो इलावा लियोपार्ड सेंसस कंडक्ट किया गया सी, जिस दे विच अनाउंस किया गया कि MP दे विच सब तो ज़्यादा लियोपार्ड पाए जाते हैं, ठीक है। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं, इस तो पहले बिल्कुल हाल ही दे विच वाटर बर्ड सेंसस डिस्कस किया सी आपां ने, वाटर बर्ड सेंसस आंध्र प्रदेश दे विच, ठीक है। इस तरीके नाल इंटरलिंक करके याद रखांगे, इंपोर्टेंट रहेंगे। इस तो इलावा अगर कर्नाटका की ही गल करते हैं, कुछ न्यूज़ डिस्कस कर लें। द राइस ATM याद रखांगे, कर्नाटका का राइस ATM। इस तो इलावा रिसेंटली पाइपलाइन डिस्कस की अपने, नैचुरल गैस पाइपलाइन कर्नाटका और केरला की, ये सी मैंगलुरु टू कोची पाइपलाइन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई सी, ठीक है, याद रखांगे। लास्ट वीक की ही न्यूज़ ने आई थिंक ये आप डिस्कस की हुई ने। नैक्सट है, विच स्टेट और UT हैज़ लॉन्च फ्री बस सर्विस टू वूमेन एंड सीनियर सिटीजन अंडर द स्कीम ब्राह्मण सारथी स्कीम के अंडर, भ्रमण यानी कि घूमना फिरना कह दें आप, तो भ्रमण सारथी स्कीम के अंडर सीनियर सिटीजनस और वूमेन्स के लिए फ्री बस सर्विस किहड़ी स्टेट या UT द्वारा शुरू की गई ने, तो असम द्वारा भ्रमण सारथी स्कीम के अंडर इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया, ठीक है जी, याद रखांगे। तो असम के बेसिकली फाइनैंस मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा द्वारा इस अनाउंसमेंट किया गया सी। असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने और जगदीश मुखी इत्थे दे गवर्नर ने। सर्बानंद सोनोवाल रिलेटेड याद रखांगे, इन्होंने एक अवार्ड दिता गया सी पॉलिटिक्स के लिए। इस तो इलावा बाकी ऑप्शंस रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट न्यूज़ ने डिस्कस कर लेने। तो अरुणाचल प्रदेश के विच परशुराम कुंड पिलग्रीमेज साइट के लिए 37.87 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने सैंक्शन किए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन फिर वही स्टैटिक तरीके से पूछा जाएगा कि परशुराम कुंड पिलग्रीमेज साइट है जी, ये कित्थे है, परशुराम कुंड पिलग्रीमेज साइट कित्थे है, अरुणाचल प्रदेश के विच। इसी तरीके नाल एक होर स्टैटिक क्वेश्चन, नवाब वाजिद अली शाह जोलॉजिकल गार्डन, नवाब वाजिद अली शाह जोलॉजिकल गार्डन कित्थे है, तो लखनऊ के विच है, ठीक है। यह भी हाई अलर्ट ते है ड्यू टू बर्ड फ्लू के केसिस इत्थे भी पाए जा रहे हैं। बेसिकली बर्ड फ्लू अगर आप गल करते हैं तकरीबन 7 या 8 स्टेट्स के विच पाया जा चुका है, अगर हुण तक की गल करते हैं, और इसके केसिस इंक्रीज होंदे जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड टॉपिक है, याद रखांगे। और पंजाब ने इसी करके इसनूं कंट्रोल्ड एरिया डिक्लेयर किया है, याद रखांगे। और नवाब वाजिद अली शाह जोलॉजिकल गार्डन कित्थे है, लखनऊ के विच। नैक्सट है, न्यू दिल्ली डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया द्वारा अनाउंसमेंट की गई कोंकणी अकैडमी की। रिसेंटली आप डिस्कस किया तमिल अकैडमी भी न्यू दिल्ली, और कोंकणी लैंग्वेज कित्थे दी है, गोवा की। तो गोवा की लैंग्वेज में भी न्यू दिल्ली के विच अकैडमी लगाई जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछना, कोंकणी बुक रिसेंटली एक कोंकणी बुक रिलीज़ की गई सी, किन्ना द्वारा की गई सी, नॉर्थ गोवा तो जोड़े लोक सभा MP ने, नॉर्थ गोवा तो लोक सभा MP यानी कि आयुष मिनिस्टर श्रीपद येसो नायक द्वारा एक बुक नूं रिलीज़ किया गया सी। बुक का नाम सी सूत्र वेदनाची सूत्र, इस तरीके की बुक सी सूत्र वेदनाची सूत्र। इस बुक के राइटर कौन से, यह कमेंट बॉक्स में दसना, ठीक है। श्रीपद येसो नायक द्वारा कोंकणी लैंग्वेज की एक बुक सूत्र वेदनाची सूत्र नूं रिलीज़ किया गया गोवा दे विच। इस बुक नूं किस द्वारा लिखा गया सी, कमेंट बॉक्स दे विच दसना, ठीक है।
ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ द ਸੈਸ਼ਨ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।